hypertension, cancer, and mental problems, anxiety disorder, addiction, stress. These are all they are conducting, and there are very good results. So we Indians, we believe in yoga, so we do without questioning. But in Western world, what happened? They want proof. So that yoga therapy provides that proof. Yes, by adapting certain food habits, certain yogic practices, certain breath control exercises, it is possible to achieve a therapeutic benefit. So yoga therapy is a fast developing field, I can say. So many Western people are also involved in this. So in this process, as a yoga teacher and health professional, so you also can help your students or clients whom you are teaching for treating their lifestyle problems, like lifestyle diseases like diabetes, hypertension. Then many people, old people are obesity, overweight people, arthritis problems, back pain. So these things you can help them to alleviate. Also, if they have any mental problems like anxiety, stress, insomnia, sleeplessness, that also can be managed through proper yogic practices. So in this regard, Dr. Reena will be there teaching us. She is a doctor in naturopathy and yoga. Also, another couple of faculties will also be joining you for teaching this thing. Okay. And once again, I welcome all of you. And I am sure that you will all attend sincerely and pay attention and learn. And the whole exercise, the purpose of whole exercise is to improve the skill and the knowledge. As you have seen that the fees we are keeping as a very minimum thing, 2,500 rupees. We are not into commercial activities. It is just to, spread the knowledge of yoga. So once again, I wish you all the very best. If you have any questions, you can ask. Otherwise, Dr. Reena can take over. Thank you. Thank you, Dr. Reena. You can take over. Okay. Hello, everyone. Hello, ma'am. Hello. Hello, everyone. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello, ma'am. Good afternoon. Good How are afternoon. you? Good afternoon. How are you? Fine. Okay. So myself, Dr. Reena Mulia. I am a yoga and naturopathy physician. My study was done from Bhopal College, and so here I am teaching yoga therapy. Actually, I want to teach, not only teach, and some teachers are teach and go. My actually motive is this कि I teach everything and आप सब हमेशा याद रखें उस चीज़ को. इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ. एंड जो भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी डिसीज रिलेटेड भी है, अगर आपको जो कुछ लोग होंगे उसमें जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होगी आसपास रिलेटेड, तो आप उसमें भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. आई विल टीच. ओके. Okay. सो टुडे आई एम फर्स्ट हम जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं. एंड आप जैसे आप सभी को पता होगा व्हाट इज योगा थेरेपी. एनीबॉडी कैन टोल्ड मी व्हाट इज योगा थेरेपी इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड. जो भी है उनको with the help of yoga to help release those chronic ailments. If it's a backache or a shoulder ache or diabetes or something of that sort. Okay. Can you speak once again? Hello. Yes, ma'am. Can you speak once again? Yeah. Yoga therapy. I wanted to know the therapy means with the help of yoga, we can help the person to come out of the illness or ailment or pain or something like that, like backache, any knee problem or any diabetes, chronic ailments, asthma or something.
ओके, ठीक है, नाइस। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मतलब जितने लोग भी है उन जो हमारी ये जो योगा थेरेपी है ये आज का थेरेपी नहीं है, 19 से चला आ रहा है, राइट? तो एवरीबडी सबका अपना अपना अलग अलग सोचना है। कुछ योगीज वगैरह हैं, उन सब योगीज ने अपनी अपनी तरीके से इसको अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, राइट? सो लाइक दैट, जैसे महर्षि पतंजलि, इट्स अ फाउंडर ऑफ योगा, राइट? सो उनने बताया था योगा चित्त वृत्ति निरोधा, इट्स मीन योगा हैज रिमूव ऑफ द वे ऑफ कंट्रोल एंड मॉडिफाइड माइंड्स, अंडरस्टैंड? And according to Bhagavad Gita, yoga karmashu kaushlam, it means skillful action is yoga. Okay, if anybody want to write, you can write, okay, if anybody needs. So today I teach yoga therapy. Yoga therapy is word, mainly yoga word जो है वो संस्कृत वर्ड है, ओके? युग युग करके वर्ड है, उससे ज्वाइन हुआ है ये, राइट? So yoga therapy is a process of empowering individual to progress towards improved health and well-being through applications, the philosophy and practices of yoga. This means योगा थेरेपी एक ऐसा में कि इंडिविजुअल जो हमें जो हमारी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है और जो भी हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, राइट? अकॉर्डिंग टू योगा हम अपनी जो भी लाइफ स्टाइल्स है, हमारी हैबिट्स है एंड सम डिसीज कंडीशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, लाइक फिजिकली मेंटल। अगर हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं आसनास प्राणायामास, दे विल इम्प्रूव द अवर हेल्थ, ओके? So now today we discuss about what is yoga therapy क्या है, then important जो concepts होते हैं कुछ yoga therapy के, then I will teach, and integrated approach of yoga therapy, and yoga therapy का क्या scope है and origin and applications हैं, some limitations हैं, today I will tell you, okay? Everybody is listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, question also, okay? Everybody is listening properly. Hello? Yeah. हाँ मैम, हिंदी में भी बताइए, हाँ जी, हिंदी में भी बताइए थोड़ा सा। अच्छा हिंदी में, ओके ओके, सॉरी। एक्चुअली योगा एक ऐसा है जिसमें कि हमारा योगा के थ्रू हमारी जो भी डेली रूटीन है, राइट? जैसे हमारा उठना और हमारा खाना, ये सब चीज़ें जो हैबिट्स होती हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारा डाइट प्रॉपरली होगा, हमारा स्लीपिंग प्रॉपरली होगा, हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉपरली होगा, ठीक है? जो भी हमारे रूल्स अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर रूल्स हम बना के अगर लाइफ में चलते हैं तो हम काफ़ी अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, राइट? लाइक जैसे कि बोला गया है कि डेली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बोला गया है कि आपको जैसे दिन में 2 बार खाना खाना है, इट्स मीन्स आपको 2 बार खाना खाना है। उसमें ये भी कि ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड्स नहीं खाना है, राइट? तो अदरवाइज आप ये सब खाना लेते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड्स लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा फिर आपको डिसीज़ होगा, इंडाइजेशन होगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी कभी। सो हमें अपनी लाइफ को, जो हमारी डेली लाइफ है, उसको एक मेंटेन करके चलना होगा। तो योगा थेरेपी में यही बताया जाता है। देन सेकेंड वन इज दिस कि अगर आप आसनास करते हैं, प्राणायाम्स करते हैं और डेली लाइफ में अपनी बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं तो बॉडी जो रहती है हमारी वो फिट भी रहती है, राइट? देन हमारी अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी मसल्स में मोबिलिटी, हमारी बॉडी में मोबिलिटी होता है, राइट? देन उसके बाद अगर हम मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा गुस्सा कम होता है, तो उससे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन, हेलो, देन कुछ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो हमें डिसीज की तरफ लेके जाते हैं। उसके कारण एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम अपनी डेली जो हमारी लाइफ है उसको हम एक वे बना ले कि हमें इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये, तो हम डिसीज़ों से बच के रह सकते हैं, राइट? आप सुन में आया आप सबको? हेलो? यस यस, Yes, ma'am. हाँ मैडम Yes, आया। ma'am. Totally Yeah. laudable, ma'am. Laudable. ओके, सो योगा मीन्स क्या? योगा का मेन मोटिव ये है कि प्रिवेंटिव होता है, हमें डिसीज जो भी ट्रीटमेंट्स है उनको प्रिवेंट करना है डिसीज़ को।
इसके साथ क्योर भी करना है। ये नहीं कि हमने कोई डिसीज लिया उसके टाइम हमने योगा वगैरह किया चलो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें उस डिसीज में रिजल्ट चाहिए होते हैं और रिजल्ट्स के बाद में हम उस डिसीज को प्रॉपर्ली क्योर भी करना होता है। ये नहीं कि आज हमें डायबिटीज है तो हमने आज कंट्रोल कर लिया, फिर लास्ट में हमने खाया पिया और हमारी बैड हैबिट्स के कारण वापस से हो गया। तो वी शुड ऑलवेज क्योर डिसीज, राइट। सो हमें एक मैनर में अपना डे फॉलो करना होगा, अपना डे में। देन योगा इज अ फिजिकली साइकोलॉजिकल थेरेपी है, जैसे आपको पता हुआ है, ठीक है। एंड हमारी इंडियाज में ऐसा है कि बहुत सारे लोग योगा फॉलो नहीं करते हैं, राइट। बट हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप फॉलो कर। मोटिव है कि अवेयरनेस ऑफ बॉडी, हम सभी को अपनी तरीके से सबको ही होता है, तो सब लोगों को अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी अवेयर होना चाहिए। देन हमारे इमोशंस को अवेयर ऑफ इमोशंस, जो भी हमारे इमोशंस हैं उन सबको कंट्रोल हमारे बस में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एंड हमारा जो ब्रेन है, उस माइंड है, ठीक है, दिमाग, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए हमें, हर चीज़ की तरफ कॉन्शियस होना चाहिए हमें। सो कुछ प्रिंसिपल्स है, कार्डिनल्स प्रिंसिपल्स है योगा थेरेपी में जो हमें फॉलो करते हैं। योगा थेरेपी मतलब ये नहीं कि हमने बस किया और हो गया, उसका हमें रिजल्ट्स भी चाहिए होता। तो फर्स्ट है कि रिलैक्स दी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, ना कि फर्टिग होना चाहिए या फिर फियर होना चाहिए, इस टाइप का नहीं, बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और जो हमारा ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रीदिंग जो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन मीन्स सांस लेना सांस छोड़ना, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है हमारी बॉडी पर, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो जो हमारी ब्रीदिंग होना चाहिए एकदम साउंड होना चाहिए एंड नॉर्मल होना चाहिए। एंड देन थर्ड वन इज काम ऑफ माइंड, हमारा माइंड को, हमें अपने माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दिन भर में अपना वर्क करते हैं, लॉट्स ऑफ वर्क तो हम दिन भर में करते हैं, तो हमें इतनी सारी थॉट्स माइंड में आते रहते हैं, कुछ गुड थॉट बैड थॉट्स, उसके कारण भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सो व्हेन वी परफॉर्म योगा एंड सो हमारा माइंड एकदम काम होना चाहिए, ओके। देन यौगिक स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, जैसे कि हमारे जो शरीर को बोला गया है अकॉर्डिंग टू कि पुरुषा प्रकृति महत एंड अहंकार, ये जो है पुरुषा, ये ड्राई टू वर्ड्स प्रा एंड प्रकृति जो है मीन्स बिफोर एंड टू मेक। प्रा मीन्स होता है बिफोर मीन्स पहले, एंड क्री मीन्स टू मेक, हमें बनाना है इस प्रकृति को। मतलब अगर हम अपने शरीर में भी शरीर को भी बनाना हुआ ना एक तरीके से कि बेस्ट से बेस्ट हमें रिजल्ट देना है, तो प्रकृति में 3 मैटर्स होते हैं, जैसे कि 3 गुण प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी मेनली, जैसे सत्व रजस एंड तमस, ओके। दिस इज द 3 प्रॉपर्टीज। देन माइंड, जो हमारा माइंड होता है उसमें माइंड को हम इन योगा ऑल्सो कॉल्ड मनस, ओके। सो उसमें 2 डिवीजन किया हुआ है, सेंसेस और दूसरा है तन मंत्रा। सेंसेस मीन्स इंद्रियां, हम अपने हमें खुद की इंद्रियां मीन्स होती है हमारे जो भी सेंसेस होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, हम उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। जैसे कर्म इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया मतलब जिससे हम वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर जैसे होता है हैंड्स, हाथ से मतलब हम काम करते हैं, माउथ से बोलते हैं, ऐसा होता है कि जैसी वाणी होती है वैसी हमारा नेचर होता है और हमें सब कुछ बता देता है पर्सन्स का। सो सिक्रेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी मतलब से यूरिन स्टूल्स ये सब पास करना। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देन ज्ञान इंद्रिया मतलब होती है पंच इंद्रियां होती है मेनली, जैसे कि आई जिससे हम देखते हैं, ये हमारी इंद्रियाज हैं। ईयर मतलब कि कान जिससे हम सुनते हैं। नोज मीन्स नाक जिससे हम सांस लेते हैं। एंड स्किन मीन्स त्वचा। एंड टंग जो कि हमारे टेस्ट वगैरह और ये सब के लिए हेल्पफुल होती है, ओके। देन पंच नेक्स्ट वन कम्स टू इनटू तन मंत्रास। तन मंत्रास के अंदर 2 डिवीजन किया गया है, जिसमें कि सप्त धातुज होती हैं मेनली, और आवर बॉडीज ऐसा बोला गया आप सबको। So you can tell me Panchbhuta's name. Hello. हेलो। हाँ, can you tell me Panchbhutas means क्या होता है? 5 Our elements. body. Okay. Can you tell me? Yeah, earth, fire, air, Yes. water.
and space. अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। हाँ ओके ठीक है। सो हमारी जो बॉडी है ऐसा बोला गया कि 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि आप सबको तो काफी अभी इसका नॉलेज होगा, पता ही होगा। एंड सो पंचकोशा मीन्स 5 शीट्स, जो हमारी बॉडी होती है मेक ऑफ 5 शीट्स, राइट। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा एंड आनंदमय कोशा। अन्नमय कोशा इज अ फिजिकल बॉडी, मतलब जो हमारा होल बॉडी है वो अन्नमय कोशा में आता है। प्राणमय कोशा मतलब एनर्जी चीज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। प्राणमय, प्राणा मीन्स होती है एनर्जी, इसमें जैसे लंग्स वगैरह जो आते हैं वो होता है प्राणवायु। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मीन्स सांस लेना, सांस छोड़ना, ये प्राणमय कोशा आता है। सो इसमें ब्रीदिंग वगैरह, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम प्राणायामास करेंगे जो हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करता है। एंड जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एक्सक्रीट आउट करता है, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको इनहेल करते हैं हम। 10 मनोमय कोशा मीन्स माइंड शीट, जो भी हमारे, अगर हम कोई चीज़, हेलो, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए से कुछ टेक्निक्स होती हैं माइंड को रिलैक्सेशन के लिए, जैसे मेडिटेशन है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है, बिकॉज उस टाइम जो हमारे थॉट्स वगैरह सब गायब हो जाते हैं। हाँ, उस टाइम हमारी बॉडी एनर्जाइज फील करती है। उसके लिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिटेशन होते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जो पेशेंट को कराई जाती हैं, जैसे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक हुआ, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक हुआ एंड क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक होगा। आप सबको इसके बारे में पता है या फिर मैं बताऊँ थोड़ा सा नॉलेज? एनीबडी नोज अबाउट? Hello. Repeat the question. Anybody knows the relaxation technique? जो हम Yes, ma'am. पेशेंट्स को, हाँ, IRT, DRT, and QRT. okay. So you know what is IRT and DRT and QRT? Yes, ma'am. Instant relaxation technique, deep relaxation technique, and quick relaxation techniques. ओके, सो हम इसमें प्रोसीजर्स कराते हैं पेशेंट्स को। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद इन 2 to 3 मिनट्स का होता है, जिसमें कि हम पेशेंट्स को लाई डाउन स्थिति में बोलते हैं कि वो लेट जाएं। फिर 1 by 1 फ्रॉम लेग से, मतलब पैर से लेकर सर तक, हम उन पूरी बॉडीज़ को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टाइट करने बोलते हैं और सांस लेते हैं, और 1 by 1 सारे बॉडी के पार्ट्स को टाइट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। उससे जो भी हमारी बॉडी में टेंशन होता है वो रिलीज होता है। सो इसी तरह से क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, जिसका हमारे बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम पे क्या करता है कि अल्फा वेव एक्टिविटीज़ होती हैं ब्रेन की कुछ, उसको इम्प्रूव करता है। हमारे पैरासिम्पैथेटिक और जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है। एंड जो हमारी रिफ्लैक्स एक्टिविटीज़ होती है ब्रेन की, उसको स्पीड अप करता है। इसी तरह से अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन और डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराते हैं। ओके, एंड सो नेक्स्ट वन इज दोषास। दोषास मीन्स 3 दोषास होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोषा, राइट। जो वाता दोषा, वाता मीन्स एयर होता है, आप सभी को पता है वाता मीन्स एयर होता है। एंड इट्स दिस इज द क्यूटेस्ट वेट सिवियर डिसीज कॉज्ड बाय, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदास में ऐसा बोला गया कि अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो उससे आपको 80 टाइप्स ऑफ की डिसीज आपको हो सकती हैं। सो दोसाज जो होते हैं उसको बैलेंस करना हमारी बॉडी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे दोसाज बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम हेल्दी होती है। अगर इनमें से भी अगर एक दोषा से अगर वात दोष बढ़ा या पित्त दोष बढ़ा, कफ बढ़ा एंड पित्ता मीन्स वाइल दोषा बढ़ा, तो फिर उसके कारण अलग अलग डिफरेंट डिसीज होती है। लाइक एग्जांपल, जैसे कि जो वात होता है, अगर वात जो होता है वो उसका मेन फंक्शन होता है हियरिंग, मतलब कि सुनने में हेल्प करता है, स्पीच मतलब बोलने में हेल्प करता है, एंड क्रिएटिविटीज़ के लिए होता है। अगर हमारा वात दोषा इम्बैलेंस होता है तो हमें इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। ओके, इसी लाइक जो पित्ता होता है, उसी तरह जो हमारी पित्ता मीन्स होता है कफ, मतलब कि जो
हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो उसके कारण जैसे में डाइजेस्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इंक्रीज होती है। देन कफा, जो कफा होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है और हमें एनर्जी देता है। ओके, सो दिस इज द 5 सीट्स ऑफ कोशास की 5 सीट्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड अन्नमय कोशा, अन्नमय कोशा जो है मेनली इंटरनल क्लीजिंग ऑफ द बॉडीज होता है। ओके, एंड जो हमारी बॉडीज के जैसे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हुआ, किडनी हुआ और जो स्टमक वगैरह हुआ, जो भी है सब, इन सब को क्या करता है कि प्रॉपर एलिमिनेशन जो एलिमिनेट करता है और रेगुलेट करता है हार्मोन्स को और इस सिस्टम्स को मेंटेन करके रखता है। एंड नाउ वी गो इन अष्टांग योग। अष्टांग योग गिवन बाय महर्षि पतंजलि, जो कि एक योगीज है, महर्षि पतंजलि ने योगा का दिया हुआ था। एंड कैन यू टेल मी यमास एंड नियमास, आप में से किसी को पता है व्हाट इज यमास एंड नियमास? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yam ma'am. is for the society and niyam is for your own self. Yes. ओके, यमास जो होता है, आई टेल, यमास मीन्स होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट कंट्रोल, जो भी हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मतलब हम सेल्फ अगर हम चाहें तो वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। नियमास मीन्स होता है रूल्स, फिक्स्ड और ऑर्डर, मतलब कि हमें कोई बोलता है कि आपको ये चीज़ करना है, रूल्स फॉलो करना है। ओके, सो इसको हम बोलेंगे नियमास। तो अगर हमारी लाइफ है, अगर हम उसको एक प्रॉपर वे में लेकर जाते हैं तो हम अच्छी, ये सब योगा थेरेपीज के एक पार्ट हैं जो कि अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारे जो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि यमास जैसे हमें आपको बता चुकी सेल्फ रिस्ट्रेंट कंट्रोल, जो कि हम खुद से कर सकते हैं। यमास में एक श्लोक है संस्कृत में, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। ओके, तो इस मीन्स होता है अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस एंड सत्य मीन्स जो होता है ट्रूथ। ओके, एंड ब्रह्मचर्य मीन्स मतलब कि एनर्जी, विग्रस एनर्जी होता है जो कि मेल्स और फीमेल्स के थ्रू होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप में, वो ब्रह्मचर्य। एंड अपरिग्रह एंड यमास। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, जस्ट आई एम बता रही हूँ। नियमास होते हैं, कुछ नियमास होते हैं जैसे कि शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी धनानी नियमा। मीन्स नियम होते हैं कुछ, जैसे कि हमें अपना बॉडी को शौच मीन्स कि हमें अपनी बॉडी को प्योर करना ही होगा, उसके लिए हमें बाथिंग लेना होगा और शौच लेना होगा, ये सब। देन संतोष मीन्स कॉन्टम्पलेशंस। ओके, कॉन्टम्प्ट मीन्स सुप्रीम एक्सीलेंस होना चाहिए, उसके लिए हैप्पीनेस होना चाहिए। मतलब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें पेशेंस होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि हाँ वी आर डूइंग दिस एंड हम इससे खुश हैं, तो हमें संतोष होना बहुत ज़रूरी है। देन तपा, इस मीन्स बॉडी और सेंसेस, अपने सेंसेस और जो भी बॉडीज़ हैं उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी गुड थॉट्स आते हैं, जो भी बैड थॉट्स आते हैं, उनको हाउ टू वी एलिमिनेट। ओके, सो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। स्वाध्याय, इट्स मीन्स सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑन गॉड्स एंड यूनियंस की तरफ, जो हमारी डिज़ायर्स होते हैं उन सबको, जो खुद की जो डिज़ायर्स होती हैं उनकी तरफ मूव करने के लिए हेल्प करता है। देन आसना इज स्थिरम सुखम आसना मीन्स जो आसना जो फिक्स एंड स्टेबल है। एंड प्राणायामा इज मीन्स होता है कि जो भी हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो रेशियो है, मीन्स जो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, देन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इसका जो ब्रीदिंग का जो प्रॉपर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का जो रेशियो है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। देन धारणा, अगर हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो अपन लोगों का धारण एक एक्ट होना चाहिए, एक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि हाँ हमें ये चीज़ फॉलो करना है। अगर हमें ये डिसीज़ है तो हमें इसके लिए ये
ये चीज फॉलो करना चाहिए। तो हमारा एक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ध्यान। ध्यान मीन्स अगर हम कोई चीज फोकस कर रहे हैं तो हमारा डाइट पर ही ध्यान होना चाहिए। फिर अगर हम कोई चीज़ अगर हम प्राणायाम जिस टाइम कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा सिर्फ प्राणायाम पर ध्यान होना चाहिए, ना कि हमारे बैड थॉट होने चाहिए कि घर पर क्या चल रहा है या फिर स्टडी में क्या हुआ। मतलब अगर हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली फोकस होना चाहिए वन पर। एंड समाधि, समाधि इज द लास्ट स्टेज एंड सुप्रीम पावर होती है जो योगीज में होते हैं। मतलब अगर हम अपनी यमास और जो भी नियमास इन सबको कंट्रोल में करते हैं तो यू कैन रीच एट द समाधि लेवल्स। मीन्स इस टाइम जब हम पहुंचते हैं तो जो चक्रास वगैरह होते हैं वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। एंड जैसे कि प्राणास, पंच प्राणास, कैन यू टेल मी एनीवन पंच प्राणास नेम? व्हाट आप सभी से प्राणा के बारे में कौन क्या जानता है, आप मुझे डिस्कस बताएंगे थोड़ा सा? एनीबॉडी टेल मी Yes, व्हाट इज ma'am. These are प्राणा? energies stationed at various part of your body. Like ओके Saman is near the stomach, navel area. ओके ओके Udan Yes, throughout the throat. Apan outwards. Vyan is which traveling throughout the body, and Pran is the pranic energy. ओके। सो हियर मतलब कि एक पर्टिकुलर वे में चलते हैं हम पंच प्राणायाम में, जैसे कि प्राण वायु, अपान वायु, सामान्य वायु, व्यान वायु एंड उदान वायु। ओके, सो प्राणवायु इस मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक, इट रिमूव्स डाउनवर्ड इनवर्ट्स, बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, जो कि लोकेटेड होता है हमारे थॉरेक्स रीजन में, जैसे कि इन थॉरेक्स रीजन लंग्स, हार्ट, ये सब प्राणवायु होते हैं। ओके, अगर ये सब अगर इम्बैलेंस होते हैं, अगर हमारा प्राणवायु इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण हमें जैसे एंजाइटी, फियर्स, अस्थमा एंड स्लीपनेस, स्ट्रोक वगैरह जैसे ब्रेथलेसनेस का कारण होता है प्राणवायु। समझ में आया आप सभी को? सो प्राणवायु इज ऑल्सो। देन अपाना, अपाना जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन के लिए। ओके, जो कि लोकेटेड होता है हमारे लोअर एब्डोमेन पर एंड बिलो द नेवल रीजन। ओके, एंड इसका फंक्शन मेनली जो होता है अपान का एलिमिनेशन होता है एंड रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो अगर आपका इम्बैलेंसेस होता है तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गए, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स एंड मेंस्ट्रुएशन जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो क्रिएट्स होता है। ओके, सो इस सब के लिए बैलेंस करने के लिए हमें मूल बंधा बताएगा, जैसे कि बंधास होता है तो वो इसके में कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड समान वायु। समान वायु जो है लोकेटेड बिटवीन द हार्ट एंड नेवल रीजन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे कि चौनी डाइजेशन में, सिक्रेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में, एलिमिनेशन में हेल्पफुल होता है। ओके, और इसकी अगर समाना वायु जो है वो इम्बैलेंस होता है, उसके कारण अपना जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है एंड वो डिस्टर्ब होता है एंड एपेटाइट वगैरह जो होता है वो लॉस होता है। ओके, so next one is Vyana Vayu. It's responsible for distribution moves outward in circular pulsating motions located heart and lungs में होता है Vyana Vayu। इसके कारण जो भी हमारी कार्डियक एक्टिविटीज़ है या फिर नर्वस सिस्टम का एक्टिविटीज़ वगैरह है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक्स वगैरह हो जाता है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिसऑर्डर्स हो जाता है एंड कार्डियक एक्टिविटीज़ या फिर जो भी हमारी ब्लड वगैरह होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण समटाइम स्ट्रोक्स हो जाता है या फिर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या फिर जो भी कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है हार्ट से रिलेटेड वो मेनली कॉज करता है। सो एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज उदान वायु। उदान वायु जो है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड कवर द हेड, नेक एंड लिम्स। मीन्स ये क्या होता है फंक्शनल एक्टिविटीज होती है उदान वायु में, इट्स मीन्स होल बॉडी। इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स और मेंटलिंग फंक्शनिंग जो भी होती हैं एंड स्पीच वगैरह के लिए, ये सब के लिए इफेक्टिव होता है। एंड प्राणास के अंदर कुछ उप प्राणास भी आते हैं। आप सबको किसी को पता है उप प्राणास क्या होता है? प्राणास के अंदर ही एक आते हैं उप प्राणास आते हैं जो भी हमारी कुछ एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल में करके रखते हैं। एनीबॉडी नोज या आई विल टेल यू? धनंजय, नाग, कृकल। मैम आप बता दीजिए प्लीज। ओके, सो ओके
ओके आई टेल यू। उप प्राणास मीन्स होता है जो प्राणास होते हैं उसी के अंदर ये उप प्राणास होते हैं जो कि हमारे कुछ मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल में करके रखते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है। जैसे उसके अंदर होता है नागा, कूर्मा, क्रीकारा, देवदत्त एंड धनंजय। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नागा। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लचिंग, हिकअप्स, जैसे हिचकियाँ आती हैं तो इसके अंदर आता है, उप्राणस के अंदर, ये नागा के अंदर आता है। तो इट बिकम आउट इन फॉर्म ऑफ गैस। जो अगर ये इम्बैलेंस होता है तो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, जैसे कि उसमें हिकअप्स वगैरह आते हैं, बैल्चिंग्स वगैरह होता है। नेक्स्ट वन इज कूर्मा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ Blinking of आइज, eyes. Yeah. या एंड ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स एंड कंट्रोल द। और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? व्हेन वी परफॉर्म त्राटका एंड मेडिटेशंस, तो हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन कूर्मा, अगर हमारा डिस्टर्ब होता है तो। ओके, देन क्रिकारा इस मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, थर्स्ट, स्नीजिंग एंड कफिंग। ओके, एंड अगर हमें ऐसा कुछ होता है तो वी कंट्रोल बाय हेल्प ऑफ फास्टिंग। आई विल टीच ऑल्सो एंड विद इन फ्यू डेज व्हाट इज फास्टिंग थेरेपी, आई विल टेल यू। Different type of fasting therapy is also effective for different diseases, very beneficial, even cancers like बहुत ही effective results मिले हुए हैं cancers वगैरह cells में भी काफ़ी अच्छा effective होता है। Then next fourth one is देवदत्त, it includes sleep। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा yawning आती है, कुछ टाइम में हमें sleeping बहुत होता है and uncontrolled concentrations होता है। ओके, सो एक डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है इसके अंदर देता है। एंड धनंजय, इट्स अ लास्ट वायु, इट्स अ टाइप ऑफ वायु, इट्स लास्ट वायु, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ। सो ये इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आई विल टीच आनंदमय कोशा। लास्ट वन इज आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इट्स अ लास्ट है जिसमें कि ब्लिसफुल बॉडी होती है। Okay, if all other koshas works properly, we can achieve the manifestation of आनंदमय कोशा। अगर हम ये सब चीज कंट्रोल करते हैं तो हम एट द लास्ट लेवल मींस ब्लिसफुल बॉडी हमारी बन जाती है। जैसे कुछ योगीज वगैरह हैं तो अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा हमारी एक्टिविटीज डाइट हर चीज को कंट्रोल करके रखना होता है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, We are ठीक है, understanding. ओके फाइन। देन अगर हम योगा पर करते हैं तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट्स आया तो हमें उन्हें बताना होगा। तो कुछ हमें उनमें हम ऐसा नहीं कि वो हमारे पास आए एंड आई टीच एंड वो हम चले गए। एक्चुअली हमें कुछ रिजल्ट्स देने होते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे पास कोई पेशेंट्स आ रहा है तो हमें उसे कुछ रिजल्ट्स देने होंगे, प्रॉपरली तरीके से उनमें कुछ रिजल्ट्स देखने मिलना चाहिए। अदरवाइज हमारा पढ़ने का या फिर पेशेंट्स को ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड लाइफ इज ऑल्सो। सो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दैन सम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो जो योगा है, अगर हम सब योगा करते हैं तो उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें विद इन डेज के अंदर हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, फर्स्ट नर्वस सिस्टम इक्विलिब्रियम टेंड्स टुवर्ड्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी ब्रेन की, दिमाग की, उसको जो भी स्ट्रेस होता है उसको एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है एंड जो भी स्ट्रेस वगैरह है, टेंशन वगैरह है, उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। ओके, दैन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा है कि जो भी समटाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है या ओबेस पर्सन्स होते हैं तो वो काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस हम उन्हें बताएं कि आप ये योगा करिए, उससे उनका पल्स रेट भी नॉर्मल रहेगा, दैट रेस्पिरेटरी जो रेट है उनका, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट रेट, ये सब भी काफ़ी अच्छे तरीके से नॉर्मल राइज होगा। देन सम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में, जैसे कि कार्डियक जो वेस्कुलर जो भी सर्कुलेशन इम्प्रूव, ब्लड को क्या सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा। अगर इससे हम योगा करते हैं तो कुछ पोस्चर्स होते हैं तो वो हार्मोन्स को भी इम्बैलेंसेस करता है। जैसे लाइक एग्जांपल, जैसे कि हम
किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए हम कुछ ऐसे योगास कराएंगे जिससे कि पैंक्रियास पे प्रेशर पड़े, राइट। देन पेल्सिस पे प्रेशर पड़ेगा तो उससे जो इंसुलिन हार्मोन होगा वो रेगुलेट होगा, ओके। बैलेंस करेगा उनकी बॉडी को। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है मेनली जो कि निकलती हैं पैंक्रियास से, जो कि इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेशन करता है एंड उसका बैलेंस करेगा, तो उससे डायबिटीज़ को कंट्रोल होगा, राइट। सो इसी तरह से हर एक सिस्टम का, हर एक डिसीज़ का पर्टिकुलर आसना जो होता है वो डिफरेंट इफेक्ट्स फॉलो करता है। लाइक जैसे अनदर एग्जांपल इज, जैसे कि किसी को बैक पेन है तो वो बैक पेन हमें उसका फर्स्ट कॉज जानना होगा कि किस कारण से हो रहा है, फिर उसको हम उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशंस मींस किस चीज़ से उसे घाटा है या फिर किस चीज़ से उसे फ़ायदा होगा या फिर किस चीज़ में उसे प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ हम पहले उनको जानकर फिर उनके अकॉर्डिंग हम उनको आसनास कुछ कराएंगे जिससे कि उनकी बॉडी में मोबिलिटी प्रोवाइड होगा, उनका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा एंड उनका जो अगर वेट ज़्यादा है तो वेट नॉर्मलाइज होगा एंड कुछ अंडर न्यूट्रिशंस हैं, मालन्यूट्रिशन पर्सन्स हैं तो उनका हेल्प करेंगे कि उनको डाइट के थ्रू और योगा के थ्रू कि उनका जो बॉडी वेट है वो एक नॉर्मल तरीके से आ पाए और जो भी उनका इम्यूनिटी मेन होता है। नाउअडेज अभी कोविड चल रहा है तो फिर उनका कुछ आसनास प्राणायामास ऐसे हैं जिनसे कि हमें उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को, रेजिस्टेंस पावर को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उनके दर्द को कम करना पड़ेगा। सो हमें उनके पेन के डिक्रीज करने के लिए भी कुछ इफेक्ट्स के लिए योगा आसनास कराते हैं। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Okay. The Anderson biochemicals effects of yoga. And when we perform the yoga, जब हम योगा परफॉर्म करते हैं तो हार्मोनल जो भी हमारी उसका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। अगर हमारी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तो जो भी इसमें जो कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे योगा थेरेपी मीन्स अगर हम अपनी डेली रूटीन्स में कुछ फूड डाइट हमें जो भी होता है वो आहार बोलते हैं सात्विक आहार लेना चाहिए, रासिक या तामसिक नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम ऑयली स्पाइसेस वी टेक फूड्स दे विल हमें वो एक डिसीज कंडीशन की तरफ बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए यौगिक डाइट को फॉलोशन करने बोला है। उसके कारण हमारी बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये सब मेंटेन करके रहेगा, ओके। एंड सम aspects and integrated approach of yoga therapy. Some component aspect of integrated approach of yoga therapy. When working with yoga therapy, it's vital that we take into consideration all the following aspects that will be a part integrated approach of problems. ओके सो एक ऐसा बोले कि जो मेनली जो डाइट फॉलो की डाइट हमारी बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जैसा हम इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी सोचने का तरीका है, जो हमारी थिंकिंग और हमारे माइंड से जो भी थॉट्स आते हैं देन हम वो अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, ओके। देन अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम ओबीज हो जाएंगे, डायबिटीज़ वगैरह प्रॉब्लम होगा, लेथार्जीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको भी इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक जैसे कि कुछ पंचतंत्र, कुछ रूल्स होते हैं पंचकर्मा, जिसमें स्लीपिंग हैबिट्स होती है हमारी, फास्टिंग वंस अ वीक होता है, ये आपको बॉडी पानी इतना ग्लास पीना है, उससे एलिमिनेशन होगा तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। देन ब्रीदिंग जो होना चाहिए सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए एंड साउंडेबल होना चाहिए, ओके। सो समटाइम्स अगर हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, दैन हम बहुत जल्दी ब्रीदिंग लेते हैं, तो उसके कारण हमारा जो बॉडी डिस्टर्ब होता है और इसके कारण समटाइम अगर हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी हार्ट ज़्यादा थक जाते तो हम लेथार्जी होता है एंड ज़्यादा हम वर्क फिर ब्रीदिंग जो हमारी वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, तो उसका प्रेशर हमारे हार्ट और लंग्स पे पड़ता है जो कि आगे और भी डिसीज़ की तरफ हमें लेके जाता है। सो इसलिए योगा थेरेपी को हमने कंडक्ट किया है कुछ मेडिसिन से, एलोपैथी जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, नेचुरोपैथीज, इसमें कुछ कायरोप्रैक्टिस, ये सब योगा के लिए नीडेड है कि अगर आप इनसे कोरिलेट करेंगे तो हम पेशेंट्स में बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। एंड सम लिमिटेशंस हैं योगा थेरेपीज़ के,
जो कि मैं आपको बताती हूँ मेनली लिमिटेशंस। जब कोई पेशेंट्स आता है, ओके, हमारे पास कोई भी पेशेंट्स आया कोई तो उसके लिए हमें क्या होना है, सबसे फुल हमारा जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है विच ऑलवेज शुड बी नॉर्मल। ओके, अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनसे कंसर्ट अच्छे से करते हैं, तो उनका आधा पेन तो वैसे ही चला जाता है, राइट। अगर हम किसी से अच्छा, अगर इवन कोई पेशेंट आया, अगर हमने उससे रूडली बिहेव किया तो उसको ऑलरेडी वो पेन है, इतना पेनफुल में है, एंड अगर हम उससे ऐसे रूडली बात करते हैं तो फिर वो और पेनफुल हो जाता है, वो अपने बारे में सोच रहता है। सो ऑलवेज फर्स्ट मोटिव होना चाहिए हमें कि उन्हें कन्विंस करना है कि हाउ टू कन्विंस, उन्हें मोटिवेट करना है कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, आपको ये फॉलो करना होगा, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग एट द कंडीशन, मतलब उनका बॉडी के अकॉर्डिंग एंड डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने तरीक़ों से बात पे उन्हें मनाना है। लाइक जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं पर्सन्स, कुछ वेजिटेरियन, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें उनको ऐसा मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि जिससे वो हमसे अट्रैक्टिव हो और वो हमारी चीज़ फॉलो कर पाए। बिकॉज अगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अगर हम अच्छे से उनको गाइड कर पा रहे हैं तो एक्चुअली होता है कि पर्सन जो भी पेशेंट्स आते हैं वो अगर डॉक्टर्स अगर बोलते हैं तो वो फॉलो करते हैं। सो हमें उन डिसीज़ को मेनली फोकस करना है और उनको फॉलो करने के लिए बोलना है। ओके, एंड अगर और ये भी फर्स्ट वन थिंग मेनली इम्पॉर्टेंट, कुछ पेश अगर कुछ इमरजेंसी केसेस आते हैं तो फर्स्ट भी हमें उनसे ये नहीं है कि हमारे प्रॉफिट के लिए हम उन्हें बोले नहीं हम इसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल सॉफ्ट पेशेंट्स आ रहे हैं तो हमें इसको फॉलो नहीं लेना। फर्स्ट उन्हें केजुअल्स एलोपैथी जो रिक्वायर्ड है, जो भी उसके अकॉर्डिंग उसमें हमें रेफ़र करना है। दैन हम उनसे बोलेंगे कि आप थोड़े दिन बाद फिर हम जब ये मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उसके बाद आप पास आइए, फिर हम उस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। ओके, एंड योगा थेरेपी वैसे नहीं कि हम मनी के लिए, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू मनी, राइट एवरीवन। एंड सम डिसऑर्डर्स एंड डिसीज अवेलेबल जो योगा थेरेपी, बहुत से जैसे कि डिसीजेज हैं उसको योगा में, जैसे कि अस्थमा हुआ, कॉन्स्टिपेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हेडेक वगैरह, एंड हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़ कुछ है, या फिर एंजाइटी वगैरह, टेंशन्स वगैरह पेशेंट्स हैं, तो उनको हम इजीली डिसीड कर सकते हैं। रोल ऑफ योगा थेरेपी मेनली, योगा का रोल्स है मेनली, इसमें हम डाइट जो होती है यौगिक डाइट, प्राणायामा और जो माइंड कंट्रोल्स टेक्निक्स होते हैं उनको मेनली हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड हाउ कैन हेल्प टू कंट्रोल द प्रिवेंट इन्फेक्टिया। अभी कुछ लोगों का सवाल ऐसा होता है कि क्या हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं क्या थ्रू योगा। आप में से किसी ने पूछा होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम क्या ठीक कर सकते हैं। येस वी कैन ट्रीट। उसका वे ऑफ जो होता है हमारा ट्रीट करने का दैट इज़ डिफरेंट, बट हम उसे प्रिवेंट एंड क्योर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि थ्रू डाइट हम उनका इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस पावर होता है उनका इम्यूनिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो जो कमिटेड डिसीज़ के ऊपर डिसीज़ की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, राइट, वो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। जो भी हमारी क्लींजिंग प्रोसेस है, मीन्स हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। तो अभी जैसे नाउ कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए इम्यूनिटी अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको ये नहीं होगा, राइट। जो भी एलर्जीज़ वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते हैं अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए जैसे एग्जांपल फॉर कफ एंड कोल्ड के लिया, तो हमें मॉर्निंग में उन पेशेंट्स को हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप तुलसी स्टीम्स लीजिए, एंड हम उन्हें बोलेंगे आप शक्तिवर्धक काढ़ा लीजिए इस टाइप का, एंड उनको ऐसी डाइट देंगे जो एंटी एलर्जिक डाइट होगी एंड एंटीबायोटिक डाइट्स होगा। उनकी फूड जो उनका डाइट चार्ट होगा उनमें हम ऐसा फूड इंक्लूड करेंगे जो कि उनकी इम्यूनिटी पावर, उनका रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करे, राइट। थ्रू डाइट हम इस तरह से। नेक्स्ट वन इज प्राणायामा। कुछ प्राणायामास होते हैं जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम हम कराएंगे, नाड़ी शुद्धि जैसे कि बैलेंसिंग प्राणायामा, एंड कूलिंग प्राणायामास होते हैं कुछ, और कुछ हीटिंग प्राणायाम होते हैं। तो उन पेशेंट्स की कंडीशन एंड डिसीज के अकॉर्डिंग हम उन पेशेंट्स को प्राणायाम कराएंगे, then they will affect beneficially. Then
फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जैसे बताया गया कि प्रोग्राम्स कि माइंड को सबसे पहले उनका माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास भी आए तो उसके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा, ये डिसीज़ मुझे कैसे हुई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे फॉलो कर पाऊंगा, मुझसे योगा नहीं आता, मैं कैसे योगा कर पाऊंगी। सो हमें फर्स्ट उनका जो माइंड है उसको सेटअप करना है, उसके माइंड को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराते हैं, जैसे कि प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू IRT, QRT एंड SMART. Now some people say Omkara meditation and cyclic meditation that are also very beneficial for us. Okay, and योग चिकित्सा, योगा थेरेपी, ओरिजिन, स्कोप एंड प्रैक्टिकल्स। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका है कि जो योगा चिकित्सा थेरेपी है वो बहुत बड़ी है। एंड इसमें क्या होता है, मेनली जो प्रैक्टिसेस करते हैं थेरेपिस्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिसेस करते हैं योग चिकित्सा, योग के थ्रू चिकित्सा मतलब होता है ट्रीट करना होता है, ठीक है। वेस्टर्न थेरेपीज में जो वेस्टर्न साइड तो काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड है, बट हमारे यहाँ थोड़ा कम है इसका। बट हम इसे और प्रोग्रेस करने के लिए कि योगा बढ़े, जिससे कि लोग अवेयर हों, एंड लोग अवेयर होंगे तो बेनिफिट है कि वो योगा के थ्रू बहुत अवेयर होंगे और वो डिजीज़ की तरफ से कम जा पाएंगे। देन सम प्रिंसिपल्स हैं योगा थेरेपी के। टीच व्हाट इज अप्रिशिएट टू इंडिविजुअल। अगर हमारे पास कोई पेशेंट्स आ रहे हैं तो हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग टीच करना है, एक एक पेशेंट को उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग टीच करना है। ओके, डिफरेंसेस एंड डिफरेंट पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हमारे पास कोई भी पेशेंट है, ऐसे नहीं कि कुछ रिच पेशेंट्स होते हैं, कुछ पुअर पेशेंट्स होते हैं, एंड कुछ सम पीपल्स आर अंडरस्टैंड हिंदी, सम आर अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमें उनका लैंग्वेज जो उनके लिए बेस्ट हो, हमें उस अकॉर्डिंग हमें उनका जानकर उनके अकॉर्डिंग हमें उनसे बात करना है। ओके, एंड सिचुएशन जो भी है पेशेंट के, ठीक है, एंड जो डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट स्टेट से या कहीं से भी आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें उनसे बात करना है। ओके, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग उनको हमें कन्विंस करना है। कुछ ओल्ड एज पीपल्स आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करेंगे। ओके, एंड सम डिपेंडिंग ऑन ऑक्यूपेशन और डिफरेंट थिंग, जैसे कि कुछ लोग गांव से आए तो हम उन्हें उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम टीच करेंगे। देन कुछ पर्सन्स जैसे कि हाई क्लास सोसाइटी से आए एंड कुछ जो ज़्यादा हाई फाई प्रोफाइल्स सोसाइटीज़ होते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनको टीच करना होगा, उनके अकॉर्डिंग उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम उनको डाइट उनका एवरीथिंग हमें बताना है। देन शुड बी उनका जो भी उनकी बैड हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, उनके बारे में जान के उनके जो बैड हैबिट्स हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, उन सबको कम करने के लिए बोला होगा, ठीक है। एंड टीचिंग मस्ट कन्फर्म द डायरेक्शन ऑफ माइंड। हमें उनको एक सही दिशा की तरफ उनके माइंड्स को लेके जाना है। फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम डिसीज, इट्स मीन्स हम डिसीज़ को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया तो फर्स्ट गोल होना चाहिए कि योगा इज़ नॉट मैजिक। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि योगा एक मैजिक है तो सडनली से हो जाता है, नहीं। अगर हम ऐसे बोलते कर्म करो फल की चिंता मत करो, राइट। इट्स मीन्स जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें डेफिनेटली मिलता है, लाइक दैट। अगर हम योगा परफॉर्म करते हैं, हमारी जो भी लाइफ स्टाइल है, हमारा मॉर्निंग उठने से लेकर दिनचर्या से लेकर के जो भी है, रात को जब हम सोते हैं उस टाइम तक अगर हमारी सारी गुड हैबिट्स हैं, हमारा डाइट, स्लीप एंड हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा हाइजीन एंड जो भी हम योगास आसनास ब्रीदिंग, हमारा अगर सब चीज़ अच्छी है तो हमारा बेनिफिशियली हमारी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू नॉन वेस्टर्न ट्रेवल्ड इन फर्स्ट कम, ठीक है। देन सम कुछ ऐसे होते हैं कि डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम फिर अकॉर्डिंग टू डिसीज़ हम पर्सनस का बताएंगे कि आपको ये चीज़ करना है। जैसे कि लाइक एग्जांपल हम डायबिटीज़ लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई डायबिटीज़ पेशेंट आया है तो फर्स्ट हम उनका बोलेंगे कि उनका कोई रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएंगे, उनको बोलेंगे, एडवाइस करेंगे कि आपका ब्लड शुगर की अगर कोई रिपोर्ट्स है तो वो दिखाइए। अदरवाइज हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, अपना शुगर लेवल जो है वो हमें बताइए, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट शुगर लेवल
ब्लड शुगर लेवल एंड उनके लिए योगास बताएंगे। जैसे कि डायबिटीज़ में मेनली हमारे यहाँ ऐसे बोला गया कि फेनुग्रीक सीड्स इट्स मीन्स मेथी दाना, उसको हम रात को पानी में भिगोते हैं एंड सुबह फिर स्प्राउट करके एंड जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको खाने के लिए बोलते हैं। सेकेंड वन लेडी फिंगर, इसमें भिंडी होती है जो कि वेजिटेबल है, उसको हम कट करते हैं और उसको पानी में एक रात को भिगो कर रखते हैं, दूसरे दिन मॉर्निंग में वो पानी हम पीते हैं। थर्ड वन इज डाइट्स में हम मेनली देते हैं उन्हें कढ़ी लीव्स, मीन्स जो हम कढ़ी लीव्स होती है, कढ़ी पत्ता, मीठी नीम भी बोलते हैं उससे, तो उसका जो पाउडर होता है 1 स्पून हम उन्हें खाने के लिए बोलते हैं, क्या वो लीजिए। नेक्स्ट वन इज ड्रम स्टिक लीव, ये भी वेजिटेबल होती है ड्रम स्टिक लीव्स, जिसे कि हम मुनगा बोलते हैं, उसका लीव्स का पाउडर बना के उसको हम पेशेंट्स को देते हैं। तो ये अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं डाइट में एंड इसके अलावा हम उन्हें शक्तिवर्धक काढ़ा, ग्रीन जूसेस जो उनके लिए अच्छा होगा एंड वो हम इन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये जूस लीजिए, ऐसे डाइट होगा। ओके, जैसे ये डाइट हुआ यौगिक डाइट हमने उन्हें बताया। नेक्स्ट वन हम उनका अप होता है कि हम उन्हें बताएंगे कि कुछ प्राणायाम जैसे भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अकॉर्डिंग टू एज हम उन्हें बताएंगे कि ये चीज़ वो फॉलो कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकेंड थर्ड वन इज फिर हम उन्हें मैम आपकी स्क्रीन पे वो सब नहीं आ रहा है, आप सिर्फ आसन बताएंगे, आसन उनको बोलेंगे, धनुरासन। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आज जो ये ट्रबल्स जो डिस्कम्फर्ट्स है ना, कि डिसीज को लिबरेशन ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज से हम कैसे मतलब छुटकारा पा सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताई थी वो कि हम ये यौगिक डाइट फॉलो करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, फिर उनका हम जो डोसेज होगा मेडिकेशंस का उसको हम रिड्यूस करेंगे। जस्ट आई टीच, आई एम गिविंग एग्जांपल एक्चुअली। ओके, हेलो, राइट मैम। ओके ठीक है। If anybody question, you can ask me. Okay. I will teach and tell again. No problem. हाँ जी मैम, इसमें जैसे भी हम डायबिटिक का जैसे एक स्टडी केस Hello? हम एग्जांपल शेयर कर रहे थे। हेलो मैम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ जी, हेलो। या बोलिए। हाँ जी हाँ मैम, जी बोलिए। जैसे अभी आप मैम अभी आप केस स्टडी एक डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल लाइक डायबिटिक के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो Yes, जैसे जी 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 आसनास में जी आपने बताया, आपने सारे प्रोसेस बताए, क्या मेडिटेशन भी कुछ रहता है इसमें पेशेंट के लिए फॉर डायबिटिक जी पेशेंट्स? जी उसके लिए मेडिटेशन, जैसे साइक्लिक मेडिटेशन होता है, जिसमें कि ओके मैम। साइक्लिक मेडिटेशन ऐसा होता है कि जिसमें आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कराएंगी जाएंगी, उसके साथ आसनास होते हैं, कुछ राइट मैम। आसनास होते हैं, तो वो दोनों का मिक्सअप करके टेक्निक्स होता है, वो चीज़ हम फॉलो कराते हैं। दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल एंड प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक आप लोगों ने शायद सुना हो, तो वो इसके लिए काफ़ी, उसमें जो हमारा प्राणवायु होता है उसको इम्प्रूव करता है, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। मैम लास्ट वाला Okay. कौन सा बताया आपने, प्राणिक? प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, वॉइस आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मैम, आधा ही समझ में आ रहा है, आधा फिर कट जा रहा है। अभी सही आ रहा है? हेलो, हाँ अभी ठीक है मैम। ओके, प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, इसको इसे पीईटी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जो इसमें जो हमारी इनर वॉइस होती है उसको हम मेडिटेशन जब हम कराते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट को हम लेटने या बैठने के लिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्टेबल, फिर उसको हम जो हमारी प्राणा एनर्जी होती है प्राणा, उसको हम वेकनिंग कराते हैं, मीन्स इनर चैंटिंग कराते हैं ओमकारा का, फिर थोड़ा वॉइस चैंटिंग कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राणा को इम्प्रूव करते हैं, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो एक ये टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, उससे जो हार्मोन्स वगैरह रेगुलेशंस होते हैं वो इफेक्टिव होता है और हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज को भी। अंडरस्टैंड एवरीवन? आपको वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, एवरीबॉडी इज लिसनिंग प्रॉपर्ली? या मैम बीच में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रही है, बट बीच बीच में आ जाता है, लेकिन बीच में कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा था मैम आपकी वॉइस। ओके, अभी ठीक है? अभी ठीक है मैम। Okay. यस मैम। Okay, ठीक है। Now for reductions in the dosage of medicine, it means
थेरेपिस्ट कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट वंस ही कम अक्रॉस द फर्स्ट माइलस्टोन। मैन जब हमारे पास पर्सन्स आया, कोई भी पेशेंट आया, तो हम उनका फर्स्ट में वी शुड नो अबाउट कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और कितने टाइम वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो हमें 1 to 2 days तो हमें उन्हें कंटिन्यू मेडिसिन को रखना होगा। देन धीरे धीरे करके हमको जो फ्रिक्वेंसी है उसका मेडिसिन का वो हम कम करेंगे। जैसे कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उसके डोसेस को हम इंटरवल्स के रूप में करेंगे। मीन्स जैसे कि जैसे वीक में डेली वो ले रहे हैं तो उनको हम अल्टरनेट लेने के लिए बोलेंगे। दैन इफेक्ट हम देखेंगे उसमें, फिर उनको वीकली ट्वाइस बोलेंगे, देन उनको फिर वीकली वंस बोलेंगे। दैन भी हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ आसनास होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके कारण उनको इफेक्टिव नहीं होता है प्रॉपरली, तो हम उनकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। ओके, नाउ माय वॉइस इज कंफर्टेबल? Yes. ओके, सो दिस फिर उसके जब पेशेंट्स आया, फिर उसकी डाइट्स हम, और बीच बीच में हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम हमारे इसमें नेचुरोपैथी में फास्टिंग थेरेपी होता है। जैसे कि पेशेंट्स होते हैं, फास्टिंग थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो हम पेशेंट आया तो उसमें थेरेपेटिक फास्टिंग होता है, या फिर कुछ थेरेपेटिक फास्टिंग मतलब कुछ थेरेपीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसी फास्टिंग होता है जो कि डिवोशनल फास्टिंग होती है। मीन्स हम भगवान की या फिर जो हमारे वर्शिप्स होते हैं उनके लिए हम फास्टिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो उसका अलग इफेक्ट होता है। सो हम दिस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम उस पर्सनस को 1 वीक पे फास्टिंग पे रखते हैं, जिसमें कि हम उन्हें रॉ देते हैं, बॉइल्ड डाइट देते हैं। देन धीरे धीरे, पहले जैसे कि हमने उन्हें बॉइल्ड डाइट दिया, बॉयल मीन्स जैसे कि उबला हुआ खाना देंगे सिर्फ हमें उन्हें, ना कि हमें ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए ना ज़्यादा ऑयली होना चाहिए। फिर सेकेंड डे हम उनको रॉ डाइट देते हैं, मतलब हम उन्हें कच्चा खाना खिलाना है मोस्ट ऑफ। देन थर्ड डे हम उन्हें बोलेंगे कि आप लिक्विड डाइट लीजिए, मतलब उन्हें सिर्फ जूस डाइट पर रखा जाएगा। देन फोर्थ डे हम उनको सिर्फ लेमन हनी वाटर या फिर उन्हें वाटर फास्टिंग कराते हैं। ये वाटर फास्टिंग एंड जूस फास्ट, लेमन हनी वाटर फास्टिंग हम इन्हें 2 days कराएंगे। देन अगर हम फिर से फास्टिंग ब्रेक करते हैं तो हम वापस से हम स्टेप बाय 1 स्टेप हम जैसा फूड ले रहे थे उसी तरीके से हम फूड को वापस हम फास्टिंग में आएंगे। जैसे फिर वापस से हम जूस में आएंगे, फिर रॉ में आएंगे, फिर बॉइल्ड में आएंगे। एंड फिर पर्सन्स को हमें वो ध्यान देना होता है, क्योंकि सभी जब कुछ अच्छा खाना होता है तो सभी फिर सबका मन करता है ना खाने का कि हाँ हमें अच्छा खाना खाना है। तो फिर हमें उनको मेंटल पावर बहुत कन्विंस करना उनको बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली जो पावर है उसको तो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कुछ डेलीशियस और कलरफुल फूड्स रखेंगे उनके सामने, जिससे वो अट्रैक्टिव होने खाने में। देन फिर उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, राइट। सो ये है कि डिसकंटिन्यूस मेडिकेशन कम्प्लीटली उनको डिसकंटिन्यू करेंगे मेडिसिन को। ओके, देन जब कम्प्लीटली हम मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे, देन वी हम उनके एंड द सिम्टम्स, लास्ट में हम सिम्टम्स देखेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। या फिर जैसे ऐसा होता है एक्चुअली कि जब हम मेडिसिन बंद करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि हमें नर्वनेस फील होता है, किसी को फीवर आ जाता है, या फास्टिंग भी करते हैं तब हम कहते हैं फर्स्ट टाइम ये सब जो होती है ना एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज से समझोगा कि डिसीज होते हैं कि हम कई लोगों को पेट खराब होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये टॉक्सिन जो होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये जो है ना नेचुरल प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्योर करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी पे। जब एक बार ये रिमूव हो जाता है तो वो सिम्टम भी डिसअपियर्स हो जाते हैं। ओके, एंड डाइटरी रेजिमेंट्स का जैसे मैंने बता चुका है कि जो शुगर्स वगैरह है, स्पाइसेस वगैरह वो कम लेना है। ओके, then abandonment of disease, continuation of the practice of yogic treatment as the patient achieve healing milestone one by one take place patient forward to the journey. It means ऐसे बोलते कि अब ठीक है, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें फॉलो करी, अब हमने बोला कि इज मैजिक, योगा इज मैजिक। नॉट, जब तक अपन फॉलो नहीं करेंगे कोई चीज़ प्रॉपरली तो मैजिक नहीं होता। एवरीबडी हैव अ, सबके पास बहुत पावर है, बस हमें उन्हें अंदर देखने की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हम बहुत बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं। राइट एवरीवन, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम।
मैम मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी, जैसे जी जी अभी आपने डिस्कस किया जैसे फास्टिंग इज एब्सोल्युटली अ वेरी इफेक्टिव इन या द योगिक थेरेपी, है ना? यस सर अब यस सर लेकिन फास्टिंग भी आई सपोज इट ऑल डिपेंड, जैसे अभी आपने गाइड किया है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट, डिसीज के ऊपर यस सर डिपेंड करता है फास्टिंग ओके की मेथड। यस सर बट जी लाइक इन केस जैसे शुगर पेशेंट्स की फास्टिंग एडवाइजेबल नहीं होती, रीजन क्योंकि क्रैम्पलिंग होती है, खाने की इच्छा बहुत जागृत होती है, आई थिंक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या तो हाँ हाँ फास्टिंग तो बट उन हम केसेस में क्या उनको हम लोग रेफर करते हैं कि नहीं, हम फास्टिंग को फिर उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्लान करते हाँ होंगे जी कि हाँ इस पेशेंट के लिए ये फास्टिंग मॉड्यूल रखना पड़ेगा हमें? जी जी जैसे कि होता है कि जैसे कुछ पेशेंट्स को भूख लगती है तो हम उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालते हैं। इट्स मींस ओके। उनको हम वन डे उनको हेलो। फूड देंगे यानी कि आपको फास्टिंग में सिर्फ ये खाना देन हेलो हाँ जी मैम हेलो आ रही है वॉइस, हाँ जी मैम अब आ रही है हेलो वॉइस। जी ओके ओके जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग पे डालते हैं उन पेशेंट्स को। जैसे कि ठीक है। कोई पर्सन आया उनको वन डे पे जैसे उन्हें खाना दिया, सेकेंड डे हम उनको बोलेंगे कि आपको ये वाला डाइट लेना है, ठीक है। देन वापस से मुझे फर्स्ट डे बोलेंगे कि आपने जो फर्स्ट डे उनका डाइट था खाने का वो लेंगे, सेकेंड डे उनको जूस पे डालेंगे, इस तरह से। एंड अगर फिर जैसे हम उनको बोलेंगे सिर्फ आपको आज फ्रूट फास्टिंग पे रहना है, तो आपको जब भी आपको भूख लगे तो आपको सिर्फ फ्रूट ही खाना है, उसके अलावा और कोई दूसरा फ्रूट नहीं लेना है। इफ सम राइट। कंडीशन में अगर कुछ पेशेंट्स हैं उनको तब भी भूख लगती है तो फिर उनके अकॉर्डिंग हम उनका डाइट चार्ट पे कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का, उसके अकॉर्डिंग हम उनको सर्विंग करते हैं। ओके ओके मैम। ओके, तो मतलब कि ओके ऐसा कोई हार्म नहीं है अगर हम उनको सिर्फ इन डाइट्स पे भी रखें शुगर पेशेंट, बिकॉज माइट बी दे आर टेकिंग सम मेडिसिन विच आर आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसके लिए डॉक्टर भी उनको एडवाइस करता है कि नहीं आपको डाइट अच्छी रखनी होगी, देन इन दैट सिनेरियो वी कैन ऑप्ट दैट हाँ फास्टिंग नहीं डाइट मेथडोलॉजी। हाँ ओके ठीक है और ओके हाँ फास्टिंग मीन्स आप डाइट लीजिए बट जो फास्टिंग के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को हेल्पफुल भी जी। हो वो चीज़ हम डाइट में इंक्लूड करेंगे। ओके राइट मैम। ओके। जैसे कुछ ओके। फ्रूट्स होते हैं तो वो फ्रूट हम लेंगे और कुछ ठीक है। अमाउंट में वो फूड हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके ठीक है मैम। ठीक है मैम। गॉट इट। ओके ठीक है। एंड प्रिवेंटिव मीन्स नॉन रिकरेंस ऑफ डिसीज, दिस मीन्स जो भी डिसीज है उसको हम ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट आया और उसने बोला मैं डिसीज है और हम उसे फोर्सफुली नहीं बिल्कुल बोल सकते कि नहीं आपको ये चीज़ फॉलो करना होगा। फर्स्ट हमें उनका मेंटल कंडीशन देखना होगा पेशेंट का, देन हम उसे बोलेंगे कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना है। देन हम के लिए कुछ ऐसे सेशंस लगाएंगे या उनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए भजन चैंटिंग्स या मंत्रास का कुछ ऐसा सेशन रखते हैं कि उससे पेशेंट क्या हो कन्वेंस हो उस चीज़ की तरफ में। उनको खुद ऐसे स्लाइड्स वगैरह दिखाएंगे, टूल्स वगैरह दिखाएंगे कि ये चीज़ करने से इतना फ़ायदा होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए कोई भी चीज़, तो उनको हम कन्वेंस करते हैं कि हम किस तरह से उनको कन्वेंस कर सकते हैं। ओके एंड सम बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं योगा थेरेपीज़ की, जैसे कि मेनली जो होता है कि जो योगा थेरेपिस्ट होता है उनका जो सेंस ऑफ पावर होना चाहिए। पहले तो उनका जो फिजिकल बॉडीज़ वगैरह है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी के सामने अच्छे से हैप्पी रहते हैं, अगर सामने वाला दुखी भी है तो वो हमें देख के खुश होता है कि वाओ इतना अच्छे से हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं ये, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ काश मैं भी ऐसा करूँ। तो हमें जो होना चाहिए एकदम हैप्पी फेस होना चाहिए और इमोशनली मतलब कि, और हाँ फर्स्ट वन थिंग जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हमें उनसे इमोशनली अटैच नहीं होना है। वी शो कि हाँ हम बहुत अच्छे से आपसे अटैच हैं बट हमें उनसे इतना रिलेशनशिप्स और हमें दोनों के बीच डिग्निटी मेंटेन रखना है। ऑलवेज रिमेंबर एवरीबॉडी। ओके यस मैम। ओके नेक्स्ट है कि सेल्फ हीलिंग पावर। हाँ जी हेलो मैम जैसे बोलते हैं शुगर वगैरह इरिवर्सिबल है, मतलब वो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, तो आपने जैसे बोला कि हम धीरे धीरे मेडिसिन बंद करेंगे, तो ये पॉसिबल है क्या योगा थेरेपी से? यस इट्स पॉसिबल। मैंने खुद रिसर्चेस किया हुआ है मैंने डायबिटीज़ पे ही रिसर्च किया था, बहुत अच्छे इफेक्टिव्स हुए हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स में आपको अगर बताएंगे तो एक दिन मैं डायबिटीज़ पे क्लास ले लूँगी, कुछ मैं डाइट वगैरह और कुछ होम ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी, तो आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग खुद ही रिजल्ट देखेंगे विद इन 15 to 20 days यू कैन सी। ठीक है मैम। I will teach ग्रेट। right set and pranayamas and some asanas and lifestyle। तो डेफिनेटली ऐसा एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में थी तो पहले हमारे ऐसा था कि पेशेंट्स को दिन भर डाइट और ये सब कराते थे बट शाम को एक
एक सेशन रखते थे, उसमें उसमें क्या करते थे, पेशेंट्स को कुछ गेम्स खिलाते थे अकॉर्डिंग टू योगा, या फिर उनका मूड फ्रेश करने के लिए ज़रूरी होता है ना, दिन भर सोचते हैं कि हमें ये थेरेपीज लेने बोलते हैं, कभी बोलते हैं एक्यूपंक्चर लो, कभी बोलते हैं डाइट लो, फिर योगा करा देते हैं, हमें तो बिठा देते हैं मेडिटेशन में, तो कुछ पेशेंट तो थक जाते हैं, तो इसलिए हम उनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जब वो दिन भर में सारी थेरेपीज लेके थक जाते थे, फिर शाम को हम उनका एंटरटेनमेंट कराते थे, तो उसमें उनका जो होता है कि एक माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और फिर और वो अग्रेसिव होता है बहुत ज़्यादा कि हाँ हमें ये चीज़ करने से इतना फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज मेंटली पावर हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी डिसीज़ हो, राइट एवरीवन, गॉट इट? यस मैम। Okay, so next in the body awareness means जो हमारी awareness of foundation yoga therapy and body awareness are depending in our understanding and sensitivity of 5 kosa, जैसे कि मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी, जो मेरी 5 कोसास अगर बैलेंस रहते हैं, ठीक है, तो हमारा बॉडी के प्रति काफ़ी अवेयर होता है, जैसे प्राणक वायु के बारे में मैंने आपको बताया, सामान अन्न में कुछ, बॉडी माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से सबका ब्रीदिंग जो होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत इफेक्टिव होती हैं। जिन कॉन्शियस प्रेजेंट्स इस मीन्स हाँ, सबसे पहली बात, अगर हम कुछ पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फोकसिंग पावर हमारी जो होना चाहिए उस चीज़ पर ही होना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए हमें कि अगर हम इस टाइम योगा कर रहे हैं तो हम रहे हैं, बट हमारे माइंड में थॉट्स कहाँ चल रहे हैं, कहीं और चल रहे हैं, तो योगा थेरेपिस्ट जो भी हैं उनका ये काम है कि वो आपके जो पेशेंट्स हैं, जो आपके पर्सन्स आए हुए हैं, उन्हें प्रॉपरली कंसल्ट करें, गाइड आ रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए कुछ ऐसे जैसे आईआईटीज करा रहे हैं, तो उनको उस एकदम माइंड को शांत रखने में हेल्पफुल करें, ओके, जिससे उनके बैड थॉट्स कुछ टाइम के लिए जाएं और उससे उनकी बॉडी रिलैक्स होगी, जिससे कि उनकी बॉडी में जो एक्टिविटीज़, ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है वो भी इम्प्रूव होगा, तो जो आपका मेंटल स्ट्रेस होगा, टेंस होगा, वो कम होगा, तो बॉडी में बनी सी बात है रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा बॉडी को, राइट। देन सबसे बड़ी बात होती है कि केयरफुल लिसनिंग, अगर सबसे पहले डॉक्टर्स अगर हैं, थेरेपिस्ट हैं, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उस आप में इतना पावर होना चाहिए कि आप केयरफुल लिसनिंग, मतलब उनमें लिसनिंग पावर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले पेशेंट को बोल देना चाहिए, देन फिर यू कंसर्न कि आप क्या कर सकते हैं, पहले हमें सुनना चाहिए सबकी प्रॉब्लम, देन वी टीच एवरीवन कि आप ये कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं, उन्हें आप मेथड्स बताइए, उनको टेक्निक्स बताइए, ठीक है, उनका सोचने का तरीका जो है उसको चेंज करें थोड़ा सा, सो केयरफुल लिसनिंग पावर भी होना चाहिए एक योगा थेरेपिस्ट में, ओके। देन स्किलफुल स्पीच, जो उनका स्पीच होना चाहिए वो एकदम क्लियरफुल होना चाहिए, ओके, एंड हमेशा बोलते कि ऑलवेज हमें हेल्पफुल होना चाहिए, राइट, तो भी हमें से हर कुछ मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज, तो हमें समटाइम ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं दे कांट पे, कुछ पेमेंट्स नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट तो उन्हें देनी चाहिए प्रॉपरली तरीके से, और किसी तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो इट्स बेटर, बिकॉज भगवान ने हमें इस लाइक बनाया कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो इट्स गुड, राइट एवरीवन। एंड द हीलिंग, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है कि हीलिंग प्रोसेस and for its own time on place and unique each individual's healing can't be rushed, मतलब जो पर्सन्स है थेरेपिस्ट है वो माइंडफुल प्रोसेस, उनमें क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कोई भी चीज़ का, अगर किसी से कुछ गलती हो रही है तो हमें उन्हें शांतिपूर्वक उनको बताना होगा कि नहीं, आप अगर ये चीज़ करते हो तो आपको ये चीज़ में फ़ायदा होगा, तो उनको पेशेंस तो होने चाहिए, और इवन अगर पेशेंट को पेशेंस नहीं है तो हम उनको अकॉर्डिंग, हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें बताना होगा कि आप ये चीज़ करिए, ये चीज़ फॉलो करिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसे जिद रहते हैं कि नहीं आप हमें प्रूफ दीजिए या कुछ बताइए ऐसा कि जिससे कि हम ठीक हो सकें, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस बताइए, कुछ होते हैं कि नहीं हम देखकर ही कर सकते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, तो उस कुछ टेक्निक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को कराते हैं, या फिर उसके कारण जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको रिमूव करते हैं, ओके। Okay, thank you everyone. So anybody wants to ask any questions? Hello.
Hello. Yeah, ma'am. Okay. So now class is over, and anybody wants to ask question, any queries? Ma'am, yeah, I wanted to know that how will we go about this class? Means you will take one disease and you will उसका पूरा आप बताएंगे, कैसे करेंगे हम? Like ये क्लास का फॉर्मेट क्या होगा? एक्चुअली जैसे कि आज तो मैंने ये जनरली क्लास ली, आपको बताया कि एक्चुअली योगा है क्या. बेसिकली वी शुड नो अबाउट ना कि योगा क्या है. अगर आप योगा थेरेपिस्ट हैं, अगर आप थेरेपी दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए आप यहाँ पर हो, आपकी क्या क्या चीज़ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, तो किस डिजीज़ के लिए. एंड नाउ जैसे कि एक एक दिन करके, जैसे 20 डेज का क्लास है, तो एक एक वन डे एक एक सिस्टम्स को लेके मैं डिस्कस करूँगी हर डिजीज़. जैसे कि फर्स्ट डे हम जैसे कि नर्वस सिस्टम ले रहे हैं, सेकेंड डे GIT सिस्टम लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट, प्राणायाम, आसनास सब सिस्टम वाइज हम मैं आपको बताऊंगी. थैंक मैम ओनली थ्योरी क्लास रहेगी या प्रैक्टिकल भी? अगर आप लोग बोलेंगे तो एक दिन में प्रैक्टिकल्स, मतलब कि मैं कुछ मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताऊंगी, तो आप सब फॉलो भी कर सकते हैं उसको. यस मैम, दैट विल बी नाइस. राइट मैम. और मैम एक छोटी सी और मैम थी हाँ जी. इनफैक्ट आपसे डिस्कशन कि मैम जी इनमें जी. कोई अगर जैसे आप जैसे बता रहे हैं आपने काफी रिसर्च की भी है इन केस ऑफ हाँ हाँ. डायबिटीज एंड ऑल दिस, तो मैम बस एक बार क्लास में थोड़ा हमें रिसर्च एग्जांपल जरूर बता दीजिएगा या कि पर्टिकुलर डाइट में व्हाट इज द हेलो. रिसर्च बेसिकली और कैसा रिजल्ट रहा है उस पे, सो दैट हम लोगों को कई बार कोई क्रॉनिक पेशेंट आता है तो हाउ टू डील विद दैट पर्सन, दैट पेशेंट हु इज क्रॉनिक, और इसमें केस स्टडी कुछ होगी तो हमें बहुत बेनिफिशियल होगी मैम. एंड इट वुड बी ग्रेट अगर आप मैम या कुछ ग्रुप श्योर. में केस स्टडी शेयर भी कर देंगे सो दैट हमारे फर्दर रेफरेंस के लिए भी वो काम आएगी, फ्यूचर रेफरेंस में भी. या श्योर. आप मुझे कोई देख के या फिर आपके आसपास में कोई पेशेंट्स हो, तो आप में से कोई भी एक एक पर्सन, जैसे कि एक दिन आपने बैक पेन लिया, आप डिसाइड कर लीजिए किसी ने एक दिन बैक पेन लिया, किसी ने एक दिन डायबिटीज लिया, तो इस तरह से, या कॉन्स्टिपेशन लिया, तो इस तरह से कोई पेशेंट्स आप लीजिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ. आप खुद ही उन पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट बताइए और उनको डाइट चार्ट बताइए, फॉलो करने बोलिए, एंड यू कैन सी रिजल्ट विद इन 8 to 10 days. ओके. सो that would be आपको great. या अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी लाइफ टाइम रहेगा. देन जो पेशेंट्स हैं उनमें आप मतलब खुद से रिजल्ट्स देख सकते हैं. ओके. बिल्कुल तो ठीक वो है मैम. आपको लाइफ टाइम याद रहेगा. और अगर हम ऐसे एक एक डिसीज को कंसल्ट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर सिस्टम वाइज हम कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस जो अभी चल रहे हैं काफ़ी, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, ओबेसिटी हुआ, PCODs हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कुछ कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ, ये सब डिसीज जो है जनरली चल रहा है, तो हमें से इन सब पे ज़्यादा फोकस करना होगा कि अगर हम इन चीज़ों को, नॉर्मल चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो क्रॉनिक डिसीज भी ऑलरेडी हो सकते हैं कंट्रोल. राइट. सो वी डिस्कस. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. मैम स्लिप डिस्क भी लेंगे क्या? क्योंकि अभी मेरे क्लास में खुद 10 में से 4 पेशेंट स्लिप डिस्क के हैं. ओके. हाँ, मैं जिस दिन मस्कुलेटर स्केलेटल सिस्टम लूंगी, उस दिन मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा बीच में. जी 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 बोलिए. सब लोगों के लिए मैं थोड़ा सा सूचना कर दे दूं मैं अच्छे से, ये कि अभी जो थेरेपी की जो क्लासेस रहेंगी वो सिस्टम वाइज रहेंगी. सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज हैं, उस दिन की क्लास, जिस सिस्टम का क्लास होगा उसी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज को हम उसी दिन डिस्कस करेंगे. उन जो भी इस तरह का जो है अलग अलग जो केसेस हैं, उन केसेस को हम उसमें शेयर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी उसमें किए जाएंगे. एंड आफ्टर दैट, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी क्लास का, टॉपिक वाइज, राइट. क्योंकि कभी ये टॉपिक हो गया, कभी वो टॉपिक हो गया, वो चीजें तो फिर क्या है, डिस्टर्ब करती हैं. तो आप अभी जो आपके दिमाग में, सभी के दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका एक ही सॉल्यूशन है. दूसरा एक ये कि हम टॉपिक वाइज क्लास करेंगे. दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं कि थेरेपी करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी तो हम वैसे उसकी कोशिश कर रहे हैं सभी कोर्सेज में इंटर्नशिप हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये जो आप इन क्लासेस में जो सीख रहे हैं उनको आगे आप अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बारे में आपको खुद भी पेशेंट देखने हैं, ट्रीट करने हैं, अंडर गाइडेंस काम करना है, डाटा कलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है. राइट. समझ रहे हैं सभी? हाँ सर. हाँ. तो इंटर्नशिप के लिए
जिससे आप एक ऑथेंटिक योगा थेरेपिस्ट आप काम कर सकें। ठीक है ना? तो उसमें आपको अंडर गाइडेंस काम भी करना होगा, प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। वो चीजें अभी प्रोसेस में है, बहुत जल्दी जल्दी ही आप लोगों को बिल्कुल वो चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई किसी का कोई? मैम आप इसका पीपीटी भेज दीजिए ना ग्रुप पे, जो आपने ये डिस्कस किया हुआ है। ओके एंड ओके, अगर आई विल केस शेयर। स्टडीज भी आपकी कुछ हो तो वी कैन गो थ्रू के आपने मतलब क्या है ये केस स्टडीज में किस तरह से हैंडल किया, वैसे भी कुछ रहेगा तो। ओके ओके, हाँ, श्योर, आई विल शेयर। उस तरह का मटेरियल आपको शेयर करते रहेंगे, है ना? यस यस, हाँ, थैंक यू मैम। अभी लास्ट में अभी क्लास कोई नहीं छोड़े। क्लास आज देखिए हमारी अभी शुरू का एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में क्लास हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी जैसे ना बहुत सारे इस क्लास में मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत नए फेसेस हैं, तो अभी क्यों ना हम पहले 1 बाय 1 आप लोग, क्योंकि हमें आपके बारे में भी जानना जरूरी है कि तभी कि जो हमें क्लास को कैसे मॉडिफाई करना है, किसको किस तरह से पढ़ाना है, वो चीजें भी हमें आपके इंट्रोडक्शन से मालूम चलती है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम 1 बाय 1 केवल आपको अपना नाम, क्या करते हैं, और अगर आप योगा सेम फील्ड से हैं तो कितने टाइम से हैं, वो चीज आप अपने बारे में बताएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम किसी का भी, सिर्फ इतनी सी ये आपको इंट्रोडक्शन देना है। ओके, 1 बाय 1। और क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपने बतानी है। हाँ, तो सबसे पहले मृणालिनी जी। जी मैम बताइए, आप माइक ऑन कीजिए मैम, आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मृणाली जी। हाँ नहीं मैम, अभी आवाज नहीं आई आपकी। हेलो। हाँ जी हेलो, मैम, अब आवाज आ गई है। आ रही है। ओके, मेरा जी। नाम मृणालिनी महागांवकर है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइट कंसल्टेंट एंड फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। इस फील्ड में मैं 6 साल से काम कर रही हूँ। ओके। गुड। नेक्स्ट हर्षद जी। हर्षद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जब तक नेक्स्ट अगला लेते हैं, जब तक वो अभी नहीं सुन पा रहे हैं। इंदिरा जी। यस सर। ये अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम इंदिरा पाटिल है। मेरा YTTC कोर्स हुआ है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। मैं 2 ईयर से इस फील्ड में हूँ। ओके। प्रियंका अग्रवाल जी। हेलो एवरीवन, सर माई सेल्फ प्रियंका अग्रवाल। मैंने डी फार्मेसी किया है एंड मैं पिछले 1 ईयर से मतलब योगा टीचर हूँ। थैंक यू। ओके, 1 साल से आप योगा टीचर हैं। ओके। यस सर। ओके, ठीक है। अमित जी। Hi, good evening to all. Good evening, sir, and good evening, ma'am. Good Basically, I am Amit Koda, और मैं basically since yoga is my passion and I just love yoga, तो मैंने last year yoga का YTT 500 hours का course किया था. Along with I am teaching yoga, but it is along with my job. So still I have more than 20 years I working in a private firm. So I just continue with my passion, which I just started last year itself. So I am in the learning stage. Still I am teaching yoga, but मैं learning भी कर रहा हूँ साथ साथ to explore more knowledge. Very good. Okay. Sorry, मनस्विनी जी। अगर हम अपना वीडियोस भी अगर कुछ देर के लिए ऑन कर लें तो बेटर रहेगा सब, है ना, इंट्रोडक्शन के टाइम पे। हेलो मैम। हाँ जी, मैं मनस्विनी मुंबई से बोल रही हूँ। डिप्लोमा 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है मैंने, एडवांस डिप्लोमा भी किया है। योगा का डिप्लोमा किया है आपने? यस यस, हाँ। Okay. हाँ जी, हाँ जी, मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है जी।
हाँ जी, और एडवांस आसना का कोर्स किया है, टीटीसी भी किया है। ओके, कितना हाँ, टाइम और हुआ अभी मैम? आपका थेरेपी करके मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ। वेरी गुड। हाँ कितना जी, टाइम हुआ मैम आपको डिप्लोमा किए हुए? अभी लास्ट ईयर ही हुआ है। लास्ट ईयर किया है, ओके। हाँ मतलब अभी हाँ हाँ, तो योगा फील्ड में अभी कोई एक्सपीरियंस आपने कलेक्ट नहीं किया है ना? नहीं नहीं अभी तक नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके। सचिन जी। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम सचिन गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ लास्ट 13 ईयर से। लास्ट 3 ईयर से मैंने योगा में ज्वाइन किया है और मैंने RYT 200 किया है योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से। उसके बाद मैं MA सेकेंड ईयर योगा से हूँ एंड मेरा TTC लेवल 1 कंप्लीट है और मैंने ये ज्वाइन किया है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। फिलहाल मैं बैचेस लेता हूँ करंटली योगा के। ओके, गुड, थैंक यू। मुनीरा जी। आवाज तो खोलिए मैम, माइक तो बंद है आपका। वैसे खुला रहता है जबकि अभी बंद है। जी बोलिए। Good evening, madam. Good evening, sir. I have done my QCI level 3. आयुष का सर्टिफिकेट हो गया है एंड SVASA से मैंने YIC किया है एंड currently I am doing Ayurveda and MSc Yoga from SVASA Bangalore. योगा मेरा ही पैशन रहा है 10 years into योगा और मैं सिखा रही हूँ from the past at least 4-5 years. ओके, तो थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेशेंट्स बहुत आते हैं तो उसके लिए थैंक जी। यू, दैट इज व्हाई आई वांट जॉइन। वैसे योगा में कहते हैं कि हम सिर्फ योगा सिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हर पेशेंट, हर कैंडिडेट जो हमारे पास आता है ना, उसकी कुछ ना कुछ डिजीजेज उसके पास होते ही हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम योगा क्लास में ही उन डिजीजेज को भी ठीक कर लें। उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेरीज और ये सब उनकी रहती ही है। तो हम सब योगा टीचर्स को वैसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसके एक, क्योंकि जिस तरह से हम एक कस्टमर को डील करते हैं वैसे ही जो हमारे पास में योगा सीखने आ रहा है तो एज वो हमको एक तरह से डॉक्टर भी मानता है कि योगा टीचर भी मानता है कि वो चाहता है कि हमारे पास में सब कुछ एक जादू के डंडे की जैसे सारी जानकारी एक जगह मिल जाए। तो हम सबको एक योगा थेरेपिस्ट को, एक योगा टीचर को इसीलिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में जो थेरेपी हैं उनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, राइट? तो एक्चुअली ये योगा थेरेपी और हम लोग जो ये कोर्सेज जो रन कर रहे हैं इसका पर्पस ही यही है कि हम अभी जो लॉकडाउन टाइम है खाली है इसमें हम अपनी नॉलेज गेन कर सकें, राइट? चलिए अगला है प्रणय। ओ प्रणय जी की शक्ल दिख गई, क्या बात है प्रणय जी। मैं आपको कितनी बार मैसेज किया हूँ कि भाई क्लास ज्वाइन करो, थैंक गॉड आज आपने क्लास ज्वाइन किया। चलिए बताइए सर, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आप म्यूट है अभी, आपका माइक ऑन करें। हाँ आवाज नहीं आ रहा, जरा वॉल्यूम खोलिए। नहीं अभी नहीं आया। नहीं अभी आवाज नहीं आ रहा है। चलिए आप तब तक आप अपने ये ठीक करें। कविता जी। Hello, hello. I am Kavita Om Kumar. I did my master's in yoga. I was into this yoga field for the past 4 years, and I did my engineering, master's in engineering also. Even though I did my engineering, I am very much passionate in this field. So to improve my knowledge in therapy field, I joined in this course. Thank you. Okay, very good. नेक्स्ट सरस्वती जी। हमारे अब तक के सभी कोर्सेज में सबसे सरस्वती जी के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। देखिए अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें शायद काफ़ी सीनियर हैं और जितने भी हम लोग है ना सरस्वती जी।
सरस्वती जी आप सुन रहे हैं? सरस्वती जी आप सुन पा रहे हैं? यस, सुन पा रहे, बोलिए बोलिए। जी जी। और आप अपना इंट्रोडक्शन दें मैम। Good afternoon, ma'am. I am Saraswati Nair. Right now I am in Kerala, but we were staying in Mumbai because of lockdown. And यहाँ केरला में हूँ। मैं since last 20 years से योगा सिखाती हूँ। IFYP sorry आयुष का level 2 certified teacher है। और मैं बहुत ही अच्छा जानकारी रखती हूँ योगा के बारे में, और इतना सारे कोर्सेस में हाँ किया है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना कम समय में बहुत कुछ जानकारी देने वाले जो कोर्स है IFYP इन्हें शुरू किया है। लॉकडाउन का वजह से ये सब करने को मौका मुझे मिला, उसमें आई एम वेरी मच thankful to IFYP and all the faculties. थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। सच में that's all. सबसे सीनियर हैं, और देखिए सभी कोर्सेज में इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है और हर कोर्स को इन्होंने अटेंड किया है। यानी जो भी हम लोग एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड जो भी 8-9 जो कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं अभी इस टाइम में, उन सभी कोर्सेज को मैम ने ज्वाइन किया है वन बाय वन। यानी आप देखिए कि नॉलेज के लिए कोई एज नहीं होती। Yes sir. And one thing I wanted to say, today our celebration, Onam celebration was there. Sir, you are hearing now? Yeah. Onam celebration was there for Keralites, even though I attended these courses. जल्दी सब तैयारी किया, उसके बाद में ऐसा टाइम का बहुत कमी था, ऐसे ही करने में टाइम पर बैठ गया। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सरस्वती मैम। ओके सर, थैंक यू। अनीता जी, अनीता शिंदे। Hi sir, hello everybody. My name is Anita Shinde. I am from Mumbai and I am practicing yoga from 2004. मैं इतने साल से योगा कर रही हूँ। I am CCI certified level 2 teacher और मैं 4 साल से योगा फुल टाइम सिखा रही हूँ। वैसे मेरा प्रोफेशन ग्राफिक डिजाइनिंग है, but you know I take freelancing. I do graphic designing also. I run my own classes and I'm art of living faculty also. So I teach Sudarshan Kriya from last 6 years. Very good. So this has been a big help, you know sir. आप जो भी सिखा रहे हैं, मैंने अभी न्यूट्रिशन का भी ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत सालों से चाह रही थी कि कुछ अच्छा और डीप नॉलेज इसमें मिले, तो इससे लॉकडाउन का तो फायदा ही हुआ, हमें इतना सारा नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू। जो कहते हैं ना कि जो अभी मुश्किल से टाइम मिला है हम लोगों को घर में बैठने के लिए, है ना, हमने उस मौके का फायदा उठाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हर्षद जी, आप सुन पा रहे हैं? सर माइक म्यूट है अभी, आपका माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन करें सर, म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए। Okay, हाँ now जी। listening? Yeah. Clear voice? Yeah. Okay, good evening. I'm Harshad. I'm from Mumbai. I have done my TDC from Yog Vidya Niketan. I'm into yoga since 2000, learning and teaching, and going on still. Okay, very good. कैसा लगा सर आज क्लास आपको? अच्छा था, लेकिन थोड़ा बड़ा फास्ट है, कभी इसका वॉइस ट्रैक हो रहा था, लिंक टूट गया था उसमें। एक्चुअली ये नेटवर्क इश्यू है। हाँ, बट फिर भी कोशिश करते हैं। ओके। हाँ, ये प्रणय जी, हाँ एक अच्छा नहीं हो रहा क्या? ओके ठीक है। नेक्स्ट इंद्रा जी हो गए। प्रणय जी का माइक का प्रॉब्लम है। ओके, मुनिराय कविता जी हो गया। सचिन जी हो गया ना आपका इंट्रोडक्शन? हो गया। ओके राइट। एंड गंगा प्रसाद जी,
हेलो। हेलो सर, माइक जरा वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ओम। हरिओम। हाँ, तो मैं योगा टीचर हूँ। तो आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो योगा थेरेपी का नॉलेज बढ़ाने के लिए सर ये वीडियो अपना ऑन कर जो लीजिए। 2 हफ्ते का कोर्स है, हाँ हाँ वो कोर्स नॉलेज अपडेट के लिए ये ज्वाइन किया है मैंने। जी सर, क्वालिफिकेशन और ये भी बताइए। मेरा क्वालिफिकेशन बीए योगा है। ओह वेरी गुड। QCI लेवल 2 पास हूँ। वाओ। ओके, अभी इस प्रोफेशन में कब से हैं सर? ओके, राइट। नेक्स्ट निवेदिता जी। Yes, sir. Yeah. जी। Hello everyone. Good evening. Good evening, ma'am. मैं 13 ईयर से भी जापान में रहती हूँ। लास्ट 6 मंथ से मैं IFYP से जुड़ी हुई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने भी सारे कोर्सेज कर लिए हैं और लास्ट 20 ईयर से मैं योगा सीख भी रही हूँ और फ्री टाइम में सिखा भी रही हूँ। और मैं भी टिल एंड ऑफ माय लाइफ आई विल लर्न एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अभी आप जापान में हैं, राइट? जी सर, जी। वेरी गुड। ओके, एंड हाँ, वन ऑफ द IFYP trustees available now, Swati ji. स्वाति जी, आप सुन पा रही हैं? हेलो, यस सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। यस, बताइए मैम, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम स्वाति है। बस इतना ही मेरे लिए, आप लोगों के लिए काफी है। मैं भी आपको बता दूं कि स्वाति जी हमारी IFYP की ट्रस्टी हैं और काफी सीनियर टीचर हैं एंड अभी दिल्ली से हैं और अपने इसी कोर्सेज में प्राणायाम एंड मेडिटेशन एंड योगा बेसिक जो क्लासेस जो हुई है शुरू में, वो मैम ने ही क्लासेस लिए हैं। और मैम आप इसके अलावा आप और कुछ बताना चाहे, बताइए प्लीज। सॉरी नहीं, बस इंट्रोडक्शन इतना ही था, क्योंकि जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने मैं देख रही हूँ, सब वेल एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड हैं और मुझे लगता है मैं वहाँ पर खड़ी नहीं हूँ। मैं थोड़ा, और काफी अच्छा लग रहा है और इन लोगों से काफी सीखने को मिलेगा हम लोगों को, राइट? बिल्कुल। और मैम का क्लास भी मैंने देखा, काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है थेरेपी में। सो वी विल होप दैट क्लास इस तरह से चलते रहे और हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। और निवेदिता मैम, सरस्वती मैम, ये लोग तो काफी कुछ सीख लिया, काफी कोर्सेज कर लिए, तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है ये इन लोगों को पता है, चल ही रहा होगा हमारे फेडरेशन के थ्रू। और सभी सीखने वाले हैं और मैं भी लर्नर हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू पराशर जी। थैंक यू मैम। एंड आई थिंक प्रणय जी का माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने मैसेज के चैट के थ्रू भेजा है कि वो योगा टीचर हैं एंड फ्रॉम कलकत्ता एंड प्रोफेशनल लास्ट 1 year। ओके, एज व्यासा से, केम फ्रॉम व्यासा। ओके, वेरी गुड। बट सर, प्रणय सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अब आप क्लास में रेगुलर जरूर रहिएगा। Sir, sorry to disturb you. I have to leave. I have to leave the meeting. Yeah, ma'am. Yeah, अभी मेरी बैच शुरू होने वाली है। ठीक है मैम, वैसे भी बस टाइम भी अपना हो गया। Yes, sir. I'll leave now. Yes. Thank you, ma'am. See you tomorrow. Yes. Last IFYP president Sadanand sir also available, right? सर, आपसे 2 शब्द जरा आप भी कह दीजिए आज।
सदानंद सर। तो हमें नहीं लगता है, शायद नहीं, हाँ हो सकता हाँ वी कैन वाइंड अप तरह से। है। चलिए कोई नहीं, तो ठीक है। सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज। और आप लोग अपने ग्रुप में अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें। सर थोड़ा क्लास के टाइमिंग, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा क्लास के टाइमिंग के लिए बात कर दीजिए। क्लास का टाइमिंग मैम अभी हम लोग टीम में अभी बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली भी ऐसे ये टाइम काफी अच्छा था कि सब लोगों को, किसी का सुबह शाम क्लासेस भी हैं और ये सब रहेंगे, तो वो हम अपन लोगों, आप लोगों ने तो अपने ग्रुप में डिस्कस कर ही लिया है। अब हम अपनी टीम में डिस्कस करते हैं, और मैं अभी जो फैकल्टी हैं उनसे भी हम लोग बात करके और फिर बात करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। और एक बात और कि हाँ, अभी जैसे ना अभी आपका इसमें आहार की जो क्लास भी होगी, तो वो सेम टाइम 3:30 बजे समथिंग ही हो पाएगी। तो कुछ हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सर ऐसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, तो मिस होता है तो बाद में हम देख सकते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्डिंग सर रेगुलरली दे दीजिएगा तो हमारे इजी हो जाएगा सर, बिल्कुल थोड़ा सा मिलेगा। गो थ्रू हो जाएंगे जो आज मैडम ने इतना हमें, क्योंकि इट्स वेरी अफेक्टिव जो मैडम ने आज सारा डिटेल